myself Khyati Vyas from JMP English Medium Saraswati Group of Education. Today I am conducting this session for grade 4, subject SS. We are dealing with chapter number 3, Life in the Northern Mountains, and this is my session number 3 for this chapter. So kids, in our previous sessions, that is session 1 and 2, we are having different places which are included in the northern mountains. In these different places, first of all, we looked into the Jammu and Kashmir and the Ladakh region. So northern mountains में बहुत सारी जगह है. इन जगहों में से हमने फर्स्ट 2 सेशंस में जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख रीजन के रिलेटेड जो है वो सारे डिटेल्स ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं. We explained to you the location of the place, then we also explained regarding the places to visit there, right? It is full of gardens and all. Then we discussed regarding the culture of the place. In culture we learned regarding what type of clothes they wear, firan and all, right? Then we discussed regarding the kangri, that is a pot which carries the burning charcoal. It keeps their body warm. Then we discussed regarding the food habit of the people living there. We also discussed regarding the temples or the monasteries found over that place. We talked about the dance forms of that place, and we also learned regarding the languages the people speak over there. Then we discussed regarding the occupation. What type of occupation people carry over there? They have farming, animal rearing, weaving, all these occupations. Right? Then we discussed regarding the Pashmina shawl that are very famous over there. This Pashmina shawl are woven with the help of Pashmina wool which are extracted from the Pashmina goats. So this was all regarding the Jammu and the Kashmir and the Ladakh region. Next region, that is the Himachal Pradesh. We are going to discuss regarding the Himachal Pradesh in this lecture. So let us start the explanation part of the Himachal Pradesh. Let's learn more about Himachal Pradesh now. Himachal Pradesh. Himachal Pradesh lies in the northern mountains, south of the Union Territory of Jammu and Kashmir and Ladakh. जम्मू एंड कश्मीर से जैसे आप नीचे साउथ की तरफ आते हो तो हिमाचल प्रदेश स्टार्ट हो जाता है टुवर्ड्स द साउथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. अगर यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर है तो टुवर्ड्स द साउथ यू हैव हिमाचल प्रदेश. जम्मू और कश्मीर से नीचे, दैट मीन्स इट इज ऑन द लोअर ऑल्टीट्यूड. तो यहाँ जम्मू कश्मीर जितनी ठंडी नहीं होती है. दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न, राइट? क्योंकि नीचे नीचे जैसे नॉर्दर्न माउंटेन्स से साउथ की तरफ आओगे तो ठंडी कम होती जाती है. सो हिमाचल प्रदेश लाइज इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स. ये भी नॉर्दर्न माउंटेन्स में ही है, बट इट इज टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर एंड द लद्दाख. द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज शिमला. यहाँ का कैपिटल कौन सा है? शिमला. जम्मू कश्मीर में हमने क्या पढ़ा था? जम्मू एंड कश्मीर इन समर द कैपिटल इज श्रीनगर एंड विंटर इट इज जम्मू, राइट? एंड लद्दाख कैपिटल इज लेह. सिमिलरली हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है शिमला. यू आर ऑलरेडी नोइंग अबाउट शिमला, राइट? एटलीस्ट नाम तो सुना ही है और शायद मम्मी पापा से कहा भी होगा शिमला एक बार तो घूमने जाना ही है, राइट? शिमला इज द कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो अगर आप शिमला जाते हो तो दैट इज इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश. शिमला कहाँ पर आता है? किस स्टेट में आता है? हिमाचल प्रदेश में. नाउ शिमला वाज द समर कैपिटल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है. जब
ब्रिटिशर्स इंडिया के ऊपर रूल करते थे ना, तब इंडिया का कैपिटल जो है ड्यूरिंग समर सीजन में इंडिया का कैपिटल जो है वो शिमला होता था। समर सीजन में इंडिया's कैपिटल यूज्ड टू बी शिमला व्हेन ब्रिटिशर्स रूल्ड ओवर इंडिया। ओके, हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेसेस एंड वैलीज। हिमाचल प्रदेश ये बहुत फेमस है, किस लिए? यहाँ के ब्यूटीफुल प्लेसेस एंड वैलीज, बहुत खूबसूरत जगह है हिमाचल प्रदेश में, वैलीज बहुत सारी है, तो इन चीजों के लिए बहुत फेमस है हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा इज वन ऑफ द मेन वैली ऑफ द हिमाचल प्रदेश, द अदर बीइंग कुल्लू। यहाँ की मेन इंपॉर्टेंट वैली जो बहुत खूबसूरत है वो है कांगड़ा, और एक जो है ब्यूटीफुल वैली वो है कुल्लू। सो कांगड़ा एंड कुल्लू, दीज आर द ब्यूटीफुल वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। वैली किसे कहते हैं? लो लैंड एरिया बिटवीन टू माउंटेन्स और हिल्स। टू माउंटेन्स है तो उसके बीच में जो लो एरिया होता है, यहाँ पर अगर कोई छोटा सा गांव है तो दिस रीजन इज कॉल्ड अ वैली। कुल्लू ऐसे ही एक जगह है, कांगड़ा भी ऐसी ही जगह है, दोनों तरफ माउंटेन से बीच की लो लैंड है, वो एक वैली है। इनमें से कौन से दो वैलीज बहुत खूबसूरत है हिमाचल प्रदेश के? इट इज कुल्लू एंड कांगड़ा। द मेन रिवर, माउंटेन रीजन है नॉर्दर्न माउंटेन्स का, तो यहाँ रिवर्स तो होंगे ही। सो द मेन रिवर विच फ्लो थ्रू द स्टेट आर रावी, बियास एंड सतलुज। रावी, बियास एंड सतलुज, ये रिवर्स हैं जो यहाँ पर फ्लो होती है। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट प्लेसेस टू विजिट। अब हिमाचल प्रदेश कहाँ है, इसका लोकेशन आपको पता चल गया, कैपिटल के बारे में पता चल गया, शिमला इज द कैपिटल। इंपॉर्टेंट वैलीज कौन से हैं? कांगड़ा एंड कुल्लू, वी लर्न दैट। देन रिवर्स ऑल्सो, रावी, बियास एंड सतलुज। नाउ प्लेसेस टू विजिट, यहाँ अगर घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश जाना है तो कौन कौन सी जगह पर आप घूमोगे? लेट्स सी दैट। हिमाचल प्रदेश हैज मेनी ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेसेस लाइक कुल्लू, मनाली, शिमला, डलहौजी एंड धर्मशाला। वंस अगेन, कुल्लू, मनाली, शिमला, डलहौजी एंड धर्मशाला। ये सारी अलग अलग, धर्मशाला जो है वो एक प्लेस का नाम है, वो एक प्लेस का नाम है। ओके, तो ये अलग अलग जगह है जहां हिमाचल प्रदेश में आप घूमने के लिए जा सकते हो। चाइल्ड, a hill station is the state has the world's highest cricket ground. चाइल्ड, ये एक हिल स्टेशन है यहाँ का जहां वर्ल्ड्स हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड जो है वो लोकेटेड है, एंड इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ हाइकर्स पैराडाइज। जो हाइकर्स होते हैं ना, हाइकिंग करते हैं, उनका पैराडाइज माना जाता है इस जगह को। ओके, सो इन दिस वी लर्न रिगार्डिंग मेनी हिल स्टेशंस। हिल स्टेशंस है, एंड देन टूरिस्ट प्लेसेस, घूमने लायक जगह कौन कौन सी है? कुल्लू, मनाली, शिमला, डलहौजी, धर्मशाला, ये सारे ब्यूटीफुल प्लेसेस है। तो अगर आप हिमाचल प्रदेश जाते हो तो इन जगहों को ध्यान से देखना, घूमने के लिए जाना, जरूर जाना। ओके, नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द कल्चर ऑफ पीपल लिविंग इन दिस एरिया। द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश वेयर ब्राइट कलर्ड क्लोथ्स। इनके क्लोथ्स बहुत ब्राइट कलर के होते हैं, एकदम ब्राइट दिखने वाले। लाइट कलर्स के कपड़े नहीं पहनते, ब्राइट कलर के कपड़े पहनते। ट्रेडिशनल ड्रेस फॉर मेन इंक्लूड लूज कोट कॉल्ड चोलास, एंड along with this they have churidars and embroidery caps. चोलास, चूड़ीदार एंड एम्ब्रॉयडरी कैप पहनते हैं यहाँ के मेन। वुमेन वेयर कुर्ता, पायजामा एंड स्कार्फ ऑन द हेड। विमेन क्या पहनती है? कुर्ता, पायजामा और स्कार्फ पहनती है हेड के ऊपर। सो मेन का ड्रेस क्या है?
cholas along with chudidars and embroidery caps, and women wear kurta, pajama and scarf. Clear? So this was regarding the clothing, उनके कपड़े, right? Now, rice, maize and vegetables form the important part of the staple diet of the people. Rice, maize. Maize किसे कहते हैं? Yes, मकई. Correct? तो राइस, मेज एंड वेजिटेबल्स ये यहाँ का स्टेपल डाइट यानी मेन फूड माना जाता है। जो रोज खाते हैं ना उसे स्टेपल फूड कहते हैं। तो इनका स्टेपल डाइट क्या है? राइस, मेज एंड वेजिटेबल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, राइट? देन पतीर, चौक, भागचेरी एंड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट डिशेस ऑफ द रीजन। तो ये यहाँ के और सारे इंपॉर्टेंट डिशेस है जैसे कि पतीर, चौक, देन भागचेरी। These are the important dishes of this state other than the rice, maize and vegetable. जो राइस, मेज, वेजिटेबल है वो तो नॉर्मल होते ही है, बाकी के फूड भी है वो यहाँ पर अवेलेबल है। Now, the people of Himachal Pradesh love folk music and dance. यहाँ के लोग they are fond of music, folk music and dance. यहाँ के local folk music and dance के बहुत दीवाने हैं। बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स के डांसेस यहाँ पर होते हैं। Some of the important dance forms of the state include दुलशौल, दारवेशी, द्रौदी, देव नृत्य, राक्षस नृत्य, दांगी, लासा, नाती एंड नागास। ये सारे अलग अलग डांस फॉर्म्स हैं जो यहाँ के लोग परफॉर्म करते हैं। दशहरा ऑफ कुल्लू वैली इज द मेजर फेस्टिवल ऑफ द स्टेट। कुल्लू वैली में दशहरा फेस्टिवल बहुत जोरों से मनाया जाता है। सो इट इज द मेजर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द कुल्लू वैली। नाउ सो वी लर्न रिगार्डिंग देयर क्लोथिंग, देन वी डिस्कस देयर फूड हैबिट्स, that is the staple food and other dishes. Then we discussed regarding their interest in dance, music, etc. Now, the language. Which language are spoken in this place? हिमाचल प्रदेश में कौन सी languages बोलते हैं? So some of the most commonly spoken language include Hindi, Punjabi, Pahari, Dogri, Mandeli, Kangri and Kinnori. Once again, let me repeat. Hindi, that is already known to you. Punjabi, शायद टीवी में सुनी होगी पंजाबी. Pahari language, Dogri, Mandeli, Kangri and Kinnori. This Kangri, I am talking about the language, not the Kangri, the pot. Kangri यहाँ language के बारे में बात कर रही हूँ, pot के बारे में नहीं बात हो रही है. So these are the languages that are spoken by the people living in this region. So in culture we learned regarding their clothing, their food habit, their interest in music and dance, different types of dances, and then we learned regarding the language spoken in this region. Next is the occupation of the people living in this region. वो क्या काम करते हैं? The people of Himachal Pradesh are mainly involved in agriculture. यहाँ एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होती है, ठंडी वाली जगह है एंड उनके स्टेपल फूड में भी आपने राइस, बीज एंड वेजिटेबल्स, राइट? तो वेजिटेबल्स यहाँ पर बहुत सारे ग्रो होते हैं। दैट मीन्स दे आर इन्वॉल्व इन फार्मिंग, एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होती है। कल्टिवेशन इज डन ऑन द हिल स्लोप्स एंड वैलीज। हिल्स के स्लोप्स एंड वैलीज में बहुत सारे कल्टिवेशंस मींस क्रॉप्स को ग्रो करते हैं ये लोग। हमने टेरेस फार्मिंग देखा था ना हिल्स के स्लोप्स पर, यस, सो दैट इज डन। द मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर आर, कौन से क्रॉप्स ग्रो होते हैं? व्हीट, मेज, राइस एंड बार्ली। व्हीट, राइस, मेज एंड बार्ली, ये सारे क्रॉप्स यहाँ ग्रो होते हैं। टेरेस फार्मिंग, व्हाट इज टेरेस फार्मिंग?
सी फॉर एग्जाम्पल ये एक हिल है, तो यहाँ जो है टेरेस फार्मिंग की जाती है। क्यों की जाती है? बिकॉज अगर यहाँ हिल्स पर ऐसे ही आप क्रॉप्स को ग्रो करोगे तो क्या होगा, जो रेन से वाटर गिरता है ना वो स्लाइड होके नीचे चला जाएगा, क्रॉप्स को वाटर नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ हिल्स के जो स्लोप होते हैं उनको स्टेप्स में कट किया जाता है। स्टेप्स, दे आर कट इनटू स्टेप्स। अब इन स्टेप्स में क्या होता है, जब पानी गिरता है रेन वाटर, तो इन स्टेप्स की वजह से पानी जो है वो एकदम से फ्लो होके नीचे नहीं आ जाता। इन स्टेप्स में क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, तो इस वजह से क्रॉप्स को अच्छे से पानी मिलता है एंड वाटर का फ्लो जो है वो कम हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। सो दे गेट गुड अमाउंट ऑफ वाटर एंड व्हेन द क्रॉप गेट्स गुड अमाउंट ऑफ वाटर दे ग्रो वेल। क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड टेरेस फार्मिंग। इसको टेरेस फार्मिंग कहा जाता है, जहां पर हिल्स या माउंटेन्स के स्लोप को स्टेप्स में कट करके फिर इन पे फार्मिंग की जाती है। सो हियर द क्रॉप्स ग्रोन आर व्हीट, मेज, राइस एंड बार्ली। अलग अलग टाइप के क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं। फ्रूट्स लाइक प्लम्स, पीचेस, एप्रिकॉट्स, पोमेग्रेनेट्स एंड एप्पल आर आल्सो ग्रोन हियर। अलग अलग फ्रूट्स भी ग्रो करते हैं, जैसे कि प्लम्स, पीचेस, एप्रिकॉट्स, पोमेग्रेनेट्स and apples. You all have almost eaten all the fruits which I mentioned. Correct? अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप अपने मम्मा पापा से कहिए, आप टेस्ट कीजिए अलग अलग फ्रूट्स। करेक्ट? You will enjoy that. Then people are also involved in toy making, wood carving and shawl weaving. यहाँ टॉयज बनाने में, देन वुड लकड़ी का काम करने में एंड वीविंग में भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। बहुत सारे लोग ऐसा काम भी करते हैं, टॉयज बनाना है या वुड के ऊपर कार्विंग करके अलग अलग हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बनाते हैं जो डेकोरेशंस के लिए रखे जाते हैं। एंड शॉल वीविंग, विंटर में जो हम शॉल ओढ़ते हैं ना उसका वीविंग भी यहाँ किया जाता है, क्योंकि ये एक बहुत ही कोल्ड प्लेस है, इसीलिए यहाँ पर भी शॉल वीविंग का काम किया जाता है। कांगड़ा इज द सेंटर ऑफ द फेमस 18th सेंचुरी पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। कांगड़ा ये एक ऐसा प्लेस है, मेन सेंटर माना जाता है किस चीज के लिए? 18th सेंचुरी के पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। मिनिएचर मतलब छोटे छोटे पेंटिंग अगर इतने अच्छे से किए जाते हैं, all the details you can see them clearly. Vocabulary words में मैंने आपको दिखाया था, करेक्ट? मिनिएचर पेंटिंग है। Yes. So Kangra is the main center where you can find the miniature paintings of the 18th century. So this was all regarding the Himachal Pradesh. हिमाचल प्रदेश में हमने ऑलरेडी देख लिया कि it comes to the south of the Jammu and Kashmir and Ladakh region. Its capital is Shimla. You have beautiful valleys. Important valleys are Kangra and Kulu. Then we learned regarding places to visit there. बहुत सारे places हैं जैसे कि कुल्लू, मनाली, शिमला, डलहौसी, धर्मशाला। इन सारी जगहों पर यहाँ घूमने के लिए जाइए। Then you learned in culture. What did you learn? First of all, we learned regarding the clothes, the traditional clothes that is worn by the people of Himachal Pradesh. We learned regarding their food habits. वो लोग क्या खाते हैं? Then we learned regarding their interest in dance and music, different types of dances. Then the language spoken. After that, we discussed regarding the occupation that people follow in this region. It includes mainly agriculture. Other than agriculture, they have toy making or the wood crafts or wood carving, and also the, what was the other one? It was shawl weaving. And Kangra is famous for miniature paintings. So all these are the important things that you have to remember
related to Himachal Pradesh. Other than Himachal Pradesh and Jammu Kashmir and Ladakh, there are few other states which are also parts of the northern mountains. But that part we will take up in the next session. So here we come to the end of the explanation part of the Himachal Pradesh region related to this chapter. Now, along with this video I am sending a PDF. Please read the instructions carefully and do your work with good handwriting, no spelling mistakes. And read the chapter till where I have explained to you in this video. Okay? If you have liked this video, please click on the like icon. See you in the next session. Bye.